फ्रेंड्स। सो यस्टरडे हमने देख रहा था हाइपोथायराइडिज्म। ओके, हाइपोथायराइडिज्म सो व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म? Hypothyroidism is a insufficient or inappropriate T3 T4 hormones from the thyroid gland. Okay, and primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism. Primary hypothyroidism mainly fault in the thyroid gland, and the secondary hypothyroidism the contributing glands. The contributing glands like pituitary glands and hypothalamus. Okay, these are the contributing glands of the hypothyroidism. Okay, as well as in previous classes we have already discussed regarding the etiological factors. The so many etiological factors. goiter भी हो सकता है hypothyroidism के लिए. Okay, और hypopituitarism भी हो सकते हैं. The so many causes हमने देखा है already. So आज हमने देखने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. ओके, सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? ओके, डायरेक्टली दिस ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू etiological factor से क्या होता है? सो T3 T4 हार्मोन्स का लेवल क्या होता है? कम होता है. डिक्रीज दी T3 एंड T4 लेवल. ओके, सो एटियोलॉजिकल फैक्टर से वजह से ले. सो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, आइदर एंडेमिक goiter, hypopituitarism, okay, thyroid trauma, thyroid injury. Okay, so whatever the causes that causes the T3 T4 hormones level, the T3 T4 secretion of T3 T4 hormones are decreases. Okay, so decreased T3 T4 hormone that causes the, so T3 T4 hormones main important क्या करते हैं मेन बॉडी में? so decreases the basal metabolic rate, BMR. okay, BMR को कम करता है. basal metabolic rate को ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. ओके, BMR कम हो गए तो BMR मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, मीन्स इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड. रेस्टिंग पीरियड में एनर्जी मिलने का काम भी बंद हो जाता है. ओके, इसके लिए क्या होता है? जो हार्ट भी वीक होता है. सो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि देयर इज नो स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इवन दो द रेस्टिंग पीरियड द बॉडी इज अनेबल टू यूटिलाइज द प्रॉपर एनर्जी. सो दैट इज द decreased BMR. so decreased cardiac output, so decreased pulse rate होगा, decreased cardiac output भी होता है. ओके, एंड decreased heart rate भी होता है, ब्रेडिकार्डिया भी होता है. decreased heart rate, so decreased cardiac output से क्या होता है? decreased cardiac output that causes the hypotension. ओके, hypotension होता है. cold intolerance होता है. cold intolerance मतलब कोल्ड, ज़्यादा बॉडी कोल्ड होते जाता है. ओके, हीट कम होता है. ओके, डिक्रीज्ड हीट रेगुलेशन मीन्स डिक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन, और हीट रेगुलेशन कम होता है. सो दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स आर अपीयर. ओके, ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म को जिसलिए इस तरीके से क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होता है. सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म का पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन है. ओके, सो वन सेकेंड देख लीजिए पैथोफिजियोलॉजी कैसे है. सो ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर T3 T4 hormones levels are decreased synthesis. The T3 T4 decreased synthesis that causes the decreases the basal metabolic rate, because the main functions of the T3 T4 hormones are, okay, regulate the basal metabolic rate of the body. So decreased BMR means the body cells are undernourished, so that's why decreased cardiac output, decreased pulse rate, decreased heart rate. So that may lead to the hypertension and cold intolerance. cold intolerance होने चालू होता है, hypertension होने चालू होता है. So this is what the pathophysiological condition of the hypothyroidism. hypothyroidism का एक pathophysiological condition है. So इसके बाद में हम देखने वाले हैं, okay, sign and symptoms of hypothyroidism. sign and symptoms of hypothyroidism. Okay, what are the sign and symptoms are appear? क्या क्या हो सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स में? तो सबसे पहला देख लीजिए, डिक्रीज द BMR, decreased BMR that causes
सो डिक्रीज BMR से बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने से क्या होता है, सो कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। सबसे पहला कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब बॉडी इज कोल्ड इंटॉलरेंस होने चालू होता है। ओके, कोल्ड इंटॉलरेंस एंड BMR नहीं तो वेट गेन होने चालू होता है, मतलब बॉडी में वेट गेन होने चालू होता है। क्यों वेट गेन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में नहीं होता, डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज हाइपोथायराइडिज्म दैट कॉजेस द डिक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, अगर रेस्टिंग पीरियड है तो भी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने चालू होता है। हाइपरथायराइडिज्म का बात कर रहा हूँ मैं। ओके, हाइपरथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म का लेवल कम होता है, सो दैट्स व्हाई वेट गेन होने चालू होता है। सो नेक्स्ट, ड्राई स्किन ड्राई होना चालू होता है, बिकॉज द सीबेसियस ग्लैंड्स आर फंक्शनलेस, सो स्किन ड्राइनेस होता है। ओके, उसके बाद में रफ हेयर्स भी रफ होने चालू होता है। रफ हेयर, क्यों रफ हेयर होता है, क्योंकि डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, सो देयर इज नो नरिशमेंट टू द हेयर्स, सो हेयर्स बिकम्स रफेस्ट हेयर होता है। ओके, एंड नेक्स्ट हेयर फॉलिंग भी होने चालू होता है। हेयर फॉलिंग, क्योंकि हेयर में ताकत ही नहीं है तो क्या होता है, हेयर फॉलिंग होने चालू होता है। ओके, हाइपोथायराइडिज्म इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ हेयर फॉलिंग। क्योंकि हेयर फॉलिंग सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म में ही नहीं होता, अलग हेरिडिटरी भी हो सकता है, अलग डिसीज कंडीशन में भी हो सकता है, और अलग कंडीशन भी हो सकता है, एनवायरमेंटल कंडीशन से भी हो सकता है, कभी कभी पानी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। सो मीन्स हाइपोथायराइडिज्म में हेयर फॉलिंग भी कॉमनली होता है, कंपल्सरी होता है, तो क्लासिकल साइन है। ओके, हेयर फॉलिंग। सो सिस्टमेटिक सिम्टम्स आर अपियर ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म को जिसलिए सिस्टमेटिक सिम्टम्स दिखने चालू होता है। सो सिस्टमेटिक में सब सिस्टमेटिक वाइज हमने देखा तो कार्डियक सिस्टम में, ओके, सो कार्डियक सिस्टम में क्या क्या होने चालू होता है, तो कार्डियक सिस्टम में सबसे पहला डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट डिक्रीज पल्स रेट होता है, डिक्रीज पल्स रेट होता है। ओके, सो इसके अलावा हाइपोटेंशन होता है, सो कभी कभी मायोकार्डियल इंफ्रॉक्शन भी हो सकता है, इस्चेमिया भी हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि ओके, सो इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम, सो मायोकार्डियम भी हो सकता है इन सीवियर कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ओके, हाइपोथायराइडिज्म का सीवियर कंडीशन में MI भी हो सकता है। ओके, इस तरीके से सिम्टम्स दिखने चालू होता है। और मस्कुलोस्केलेटल में क्या हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, ये कार्डियक सिस्टम में होगा, मस्कुलोस्केलेटल में, मसल्स में, मस्कुलोस्केलेटल में वीकनेस होता है, क्योंकि डिक्रीज BMR दैट कॉजेस द सीवियर वीकनेस, सबसे पहला वीकनेस। ओके, सो वीकनेस दिखने चालू होता है। एंड नेक्स्ट फटीग होता है, वीकनेस, फटीग। ओके, तो वीकनेस, फटीग, मसल एक भी हो सकता है, मसल एक, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ ही नहीं होता है, मसल एक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। ओके, मसल एक, स्लो मूवमेंट भी क्या होता है, स्लो होने चालू होता है। ओके, इस तरीके से सिम्टम्स दिखने चालू होता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। ओके, इसके अलावा भी हम देखा तो GI सिस्टम में क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, GI सिस्टम में क्या क्या देखने स्टार्ट होता है, GI सिस्टम में। ओके, स्लो बावेल मूवमेंट, ओके, स्लो बावेल मूवमेंट। ओके, बावेल मूवमेंट क्या होता है, स्लो हो जाता है। ओके, स्लो बावेल मूवमेंट होता है, सो इसके वजह से क्या होता है, स्लो बावेल मूवमेंट होता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। ओके, कॉन्स्टिपेशन दिखने चालू होता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स टू हार्ड स्टूल विच इज रिमेन्स इन द रेक्टम एंड एनस, विच इज डिफिकल्ट टू पास, क्योंकि पास करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। सो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, कभी कभी नोजिया भी स्टार्ट होता है, सो वोमिटिंग भी चालू होता है वो। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है,
सो हम फोर्सफुली खाना खिलाने के लिए गए तो नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सो डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, decrease basal metabolic rate and decrease the activity of the thyroid hormones, so that causes the slow movement of the bowels, so constipation, abdominal distension. So abdominal distension may lead to the nausea, vomiting if suppose patient or persons feels eating, okay, eat करने के लिए कोशिश किया तो nausea vomiting होने चालू होते हैं। सिस्टम में सिम्टम्स दिखने चालू होते हैं, मस्कुलोस्केलेटल में इस तरीके से होता है, कार्डियक सिस्टम में इस तरीके से होता है, स्किन में रफ हेयर, ड्राई हेयर, हेयर फॉलिंग होने चालू होता है। सो इस तरीके से सिस्टमेटिक सिम्टम्स दिखने चालू होता है। सो इसके अलावा हम देखा तो सो दिस हाइपोथायराइडिज्म दैट कॉजेस द hypothyroidism that causes the okay cretinism। दो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स दिखते हैं, क्रिटिनिज्म चिल्ड्रन में क्रिटिनिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म से चिल्ड्रन में एक बीमार होता है, दैट इज अ क्रिटिनिज्म बोलते हैं। अडल्ट में एक होता है सो मिक्जेडेमा, क्रिटिनिज्म एंड मिक्जेडेमा। हाइपोथायराइडिज्म दैट कॉजेस द क्रिटिनिज्म एंड मिक्जेडेमा। ओके, क्रिटिनिज्म मतलब ये हिंदी में मंद बुद्धि भी बोलते हैं, मंद बुद्धि होता है, नहीं है तो मेंटल रिटार्डेशन, ओके, मेंटल रिटार्डेशन होता है। ओके, मिक्जेडेमा में पेशेंट सेमी कॉन्शियस में जाता है, सेमी कॉन्शियसनेस, नहीं है तो अनकॉन्शियस भी जा सकते हैं सीवियर कंडीशन में। ओके, इस तरीके से हाइपोथायराइडिज्म को जैसे ले तो कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है, नहीं तो हाइपोथायराइडिज्म दैट कॉजेस क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, मिक्जेडेमा इन अडल्ट। ओके, क्रिटिनिज्म इन चिल्ड्रन, क्रिटिनिज्म होगा तो चिल्ड्रन में क्या क्या सिम्टम्स चालू होते हैं? डिफेक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में डिफेक्टिव दिखना चालू होता है, डिफेक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट, ओके, फिजिकल डेवलपमेंट में डिफेक्ट होने चालू होता है, क्योंकि T3 T4 हार्मोन्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ओके बोन्स, मसल्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स। सो दैट्स व्हाई द ऑटोमेटिकली डिफेक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट होने चालू होता है। ओके, इसके अलावा मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसलिए एनलार्ज्ड टंग होता है, एनलार्ज्ड टंग दिखने चालू होता है, एनलार्ज्ड टंग। क्रिटिनिज्म का अगर बच्चा में क्रिटिनिज्म होगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखने चालू होता है? डिफेक्टिव फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एनलार्ज्ड टंग होता है, डिप्रेस्ड रहता है बेबी। ओके, डल फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशंस डल होने चालू होता है। सो इसके अलावा फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब फीडिंग, बेबी फीड करने में बहुत क्या प्रॉब्लम करते हैं, ठीक से खाता भी नहीं है, और श्वास में भी थोड़ा वेरिएशन दिखने चालू होता है। ओके, हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोटेंशन भी होता है और श्वास भी कम होता है। सो डिस्निया लाइक होता है, क्योंकि अब नॉर्मल रेस्पिरेशन भी दिख सकता है। सो ये क्रिटिनिज्म में, सो दीज आर द क्रिटिनिज्म क्लासिकल साइन। मिक्जेडेमा में सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हो सकता है पर्सन्स। ओके, इसमें मिक्जेडेमा में मेन क्लासिकल साइन क्या होता है? पफीनेस ऑफ फेस। मिक्जेडेमा मतलब क्या होता है? मिक्जेडेमा मतलब इट इज अ collection of fat, under subcutaneous tissue, collection of fat under subcutaneous tissue and dermis, okay, so dermis में subcutaneous tissue में फैट कलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो यूज मतलब मेटाबॉलिज्म करने का पावर नहीं है बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ T3 T4 हार्मोन्स लैक। T3 T4 हार्मोन्स का मेन फंक्शंस क्या है? मेटाबॉलिज्म। सो हम जो भी खाना खाते हैं मेटाबॉलिज्म करने में ये इंपॉर्टेंट है। अगर T3 T4 लैक है तो जब हम फैट खाता है वो मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है। सो दैट स्टार्ट टू कलेक्ट अंडर द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डर्मिस। ओके, सो दैट कॉजेस द पफीनेस ऑन फेस, फेस का ऊपर
पपीनेस दिखने चालू होता है, मतलब फेस पपीनेस आता है. सो दिस इज द साइन ऑफ मिक्स्ड इन अडल्ट. अडल्ट में पपीनेस होता है, चिल्ड्रन में इस तरीके से क्लासिकल साइन दिखने चालू होता है. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म का इस तरह का साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म हम किस तरीके से मैनेजमेंट करता है. ओके, दैट इज सॉरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सबसे पहला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस. ओके, डायग्नोसिस में क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करना है. हिस्ट्री रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस बिहेवियर और अडल्ट नेचर. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन. सो रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो कॉमनली करना है. सो मेन इंपॉर्टेंट इज हियर इज सीरम TSH, सीरम T3, सीरम T4. ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4 हार्मोन्स लेवल का भी चेक करना है. इसके साथ साथ में सीरम कैल्शियम भी इम्पोर्टेंट है. सीरम कैल्शियम क्यों, बिकॉज ऑफ thyroid gland releases the calcitonin hormone, so that is important in the balancing the calcium level in the body. So serum calcium level is also play an important role in diagnosis of hypothyroidism. Okay, so T3 T4 level का क्या होता है. TSH level normally 0.2 to 5.4, 0.2 to 5.4 जो 5.4 पर लीटर मिली पर 0.2 to 5.4 ये नॉर्मल रेंज है. T3 का लेवल नॉर्मल रेंज देखा था हमने. सो T3 नॉर्मल रेंज इज, सो T3 नॉर्मल रेंज होता है. सो 80 to 250, 80 to 250 सो मिलीग्राम पर डेल होता है. सो T4 लेवल का हम नॉर्मल रेंज देखा था 80 to 250 मिलीग्राम पर डीएल एंड 5 to 12 मिलीग्राम पर डीएल. 5 to 12 मिलीग्राम पर डीएल, दिस इज द नॉर्मल रेंज होता है. सो हाइपोथायराइडिज्म में ये नॉर्मल रेंज से कम आने चालू होते हैं. ओके, नॉर्मल रेंज से क्या होता है, कम होता है. सो इसके अलावा सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, थायराइड स्कैनिंग. थायराइड स्कैनिंग, थायराइड स्कैनिंग, थायराइड स्कैनिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट. थायराइड स्कैनिंग लाइक थायराइड एक्सरे भी कर सकते हैं. थायराइड एक्सरे क्योंकि ग्वाइटर है तो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सो दैट इज डिटेक्टेड बाय द स्कैनिंग. थायराइड एक्सरे और थायराइड अल्ट्रासोनोग्राफी और थायराइड MRI. सो थायराइड MRI भी कर सकते हैं. इसके अलावा एक और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, एक और टेस्ट आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट. अपटेक टेस्ट मतलब एक रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट, ये भी थायराइड ग्लैंड का फंक्शंस और आयोडीन का लेवल और थायराइड ग्लैंड का फंक्शन चेक करने में ये मदद करता है. सो इस तरीके से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करता है हाइपोथायराइडिज्म में. हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, TSH लेवल, T3 T4 सीरम कैल्शियम लेवल. ओके, सो थायराइड स्कैनिंग, एक्सरे एंड अल्ट्रासोनोग्राफी MRI भी कर सकते हैं. सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ओके, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. अगर हमने मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सो किस तरीके से ये मैनेजमेंट करता है. ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट. मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म. ओके, कैसे मैनेजमेंट करने का है हाइपोथायराइडिज्म है. सो ओनली इम्पोर्टेंट इज, फॉर एग्जांपल हमने अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने देखा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में 2 टाइप्स है. हाइपोथायराइडिज्म में 2 टाइप्स है. एक प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या होता है, इधर ओके डिफेक्ट इन थायराइड ग्लैंड में डिफेक्ट है. सो इसलिए T3 T4 हार्मोन्स का लेवल कम आता है. T3 T4 हार्मोन्स का लेवल कम आता है. ओके, पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल रहता है. सो TSH लेवल क्या होता है,
बराबर होता है, TSS लेवल ठीक ही होता है, नॉर्मल TSS लेवल, but T3 T4 levels are reduced, that indicates the primary hypothyroidism. Okay, so secondary में क्या होता है, defect in the contributing glands, contributing glands मतलब pituitary glands भी defect है, hypothalamus भी defect है. So इसमें क्या होता है, so TSH level क्या होता है, so TSH level भी कम आता है, TSH level कम आने से T3 level भी कम आता है और T4 level भी कम आता है. Okay, so this is what तीनों TSH T3 T4 हो गए तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है. सो अगर TSH लेवल बराबर है, T3 T4 लेवल कम है, सो दैट इंडिकेट्स द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म. ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है. ओके, सो मैनेजमेंट सिंपल है. सो मैनेजमेंट का बारे में हम देख रहे तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करना है. सो मेन इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. सो हार्मोनल रिप्लेसमेंट मतलब T3 T4 लेवल बढ़ाने के लिए गोली देना है. सो लिवोथायरॉक्सिन एंड लिवोथायरोनिन, दो टाइप्स का ड्रग्स आता है, लिवोथायरॉक्सिन एंड लिवोथायरोनिन. ओके, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायराइडिज्म. ओके, हाइपोथायराइडिज्म मोस्ट प्रोबेबली ये ड्रग देता है, आइदर 50 mg per day, okay, per day, or depends upon the severity of the patient के severity, either 100 mg per day, every day morning लेना होता है ये गोली. So up to the several months or several years, up to the normal level of the T3 T4 hormones. Okay, drug of choice, this is a very important drug, levothyroxine and levothyronin. Okay, so इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज एडवाइस करना है पेशेंट को, एक्सरसाइज, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है के लिए. एक्सरसाइज मतलब दौड़ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा. सो एक्सरसाइज लाइक जस्ट वॉकिंग, जस्ट वॉक. ओके, हर रोज जस्ट वॉकिंग जैसा एक्सरसाइज करना, धीरे धीरे जस्ट वॉक किया तो इतना ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं होगा, BMR थोड़ा यूटिलाइज भी हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट इधर कैलोरी बचता रहता है, लो कैलोरी लो फैट डिपोजिशन हो रहा है. सो खाना कैसे देना है, लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी लो फैट डाइट देना है. ओके, लो कैलोरी एंड लो फैट डाइट देना है. ओके, सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म को इस तरीके से हम मैनेज करने का होता है. सो मेन इंपॉर्टेंट इज दीज ड्रग्स आर ओनली drug of choice for the management of hypothyroidism. Okay, there is no other than this way. इसका अलावा और कुछ नहीं है, हार्मोन से रिप्लेसमेंट देना होता है. ओके, अगर ये मैनेजमेंट हो गया, सपोज कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायराइडिज्म सीवियर है, T3 T4 हार्मोन्स बहुत कम है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में मैं बोला था, कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, क्रिटिनिज्म एंड मिक्स्ड एडेमा कोमा. अडल्ट में सबसे पहला मिक्स्ड एडेमा कोमा होता है. सो मिक्स्ड एडेमा कोमा is that it is one of the life threatening condition due to the severe lack of T3 T4 hormones. Okay, life threatening condition है, life threatening condition. Okay, so life threatening मतलब पेशेंट मर भी सकता है. सो सीवियर कंडीशन है. सो इस टाइम क्या करना है हमने, IV लिवोथायरॉक्सिन अभी जो गोली दिया था, ये इसका IV इंजेक्शन देना है, IV डेक्सट्रोज देना है, एंड IV फ्लूइड्स देना है. ये मैनेजमेंट है. ओके, सो IV डेक्सट्रोज, IV फ्लूइड्स, IV लिवोथायरॉक्सिन, इस तरीके से मिक्स्ड एडेमा को हमने ट्रीट कर सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशन मिक्स्ड एडेमा कोमा. मिक्स्ड एडेमा कोमा मीन्स इट इज अ severe deficiency of T3 T4 hormones that causes the life threatening condition of the patient. Then the patient is unconscious or semi consciousness, or patient go into the deep coma में जाता है पेशेंट. ओके, सीवियर की वजह से लिए पेशेंट सडनली कोमा में जा सकते हैं. सो इस टाइम पे इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट में IV देना है लिवोथायरॉक्सिन. ओके, IV देना है, IV फ्लूइड्स डेक्सट्रोज दे के ट्रीट कर सकते हैं. ओके, दिस कंप्लीट्स द hypothyroidism topic. Okay, thank you. Hypothyroidism is a definition, two types, primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism. So primary में main fault in the thyroid gland, secondary में contributing factors
So then etiological factors, so many etiological factors are iodine deficiency, pituitarism, okay, trauma, then diagnostic evaluation, history, physical examination, TSS level, T3, T4 level, calcium level, okay, thyroid scanning, iodine uptake test, okay, management में levothyroxine and levothyronine drug of choice. So diet में थोड़ा low fat and low कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, नॉर्मल प्रोटीन डाइट देना है. सो माइल्ड वॉकिंग करने के लिए बोल देना है कि जस्ट वॉकिंग. सो इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मिक्स जड़ में कोमा भी होने के चांसेस होता है. अडल्ट में मिक्स जड़ में कोमा में पेशेंट सडनली कोमा में जाके अनकॉन्शियस जाता है. इस टाइम पे हमने इमरजेंसी में आईवी लेवोथैरेक्सिन देना है 1 और 2 बार. बाद में आईवी फ्लूइड्स डेक्सट्रोज दे के पेशेंट को स्टेबलाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द हाइपोथायरायडिज्म. इन नेक्स्ट क्लास we will see regarding the hyperthyroidism. Thank you very much.